الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ شملہ پوائنٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف ملک۔ آپ کو میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم عام طور پہ ہند کو زبان میں کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے مہمان ایسے ہوں کہ جو ہند کو زبان نہ بول سکتے ہیں تو پھر یہ پروگرام اردو زبان میں کیا جاتا ہے۔ پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہزارہ ڈویژن میں ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں، مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان اداروں سے متعلق ہماری گفتگو رہتی ہے، اور اس پروگرام کو آپ پسند کر رہے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ آپ کی پسندیدگی جو بڑھ رہی ہے اس پروگرام میں ہم مزید نکھار لے کے آئیں۔ آج ہم موجود ہیں ہزارہ یونیورسٹی میں، اور جو لوگ ظاہر ہے ہمارے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں یا ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیم کے نظام میں خاص طور پہ جب ہم پاکستان بننے کے بعد کی بات کریں تو صرف ایک یونیورسٹی ہمارے صوبے میں ہوا کرتی تھی، پشاور یونیورسٹی۔ اس کے بعد پھر گومل یونیورسٹی ڈی آئی خانہ آ گئی، اور آبادی بڑھتی گئی اور علاقوں میں یہ ڈیمانڈ بڑھتی گئی کہ مزید یونیورسٹیاں بنیں۔ خاص طور پہ ہزارہ میں ایک تحریک چلی، اور خاص ایک یونیورسٹی کے لیے اور بورڈ کے لیے، اور وہ تحریک کامیاب ہوئی اور ہزارہ میں ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ مانسہرہ میں یہ یونیورسٹی قائم کی گئی، اور ماشاءاللہ ہر آنے والا دن جو ہے اس یونیورسٹی کی ترقی میں معاون ثابت ہوا، اور آج یہ یونیورسٹی ہمارے صوبے میں ایک اچھی یونیورسٹی گنی جاتی ہے۔ خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں کی اگر ہم بات کریں، جب کورونا آیا اور اس کے بعد ایک وی سی یہاں پہ آئے جو نئے، تو انہوں نے اس یونیورسٹی میں انقلابی تبدیلیاں کیں، اور بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ ان سے بات کریں، کیونکہ یونیورسٹی میں جو تبدیلیاں انہوں نے کیں وہ ہمیں دیکھنے کو ابھی نظر آ رہی ہیں یا اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد، ہمارے ملک کا ایک بڑا نام ہے تعلیم کے شعبے میں، اور صوبے میں تو بہت بڑا نام ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، وائس چانسلر ہیں ہزارہ یونیورسٹی کے جتنے بھی امور ہیں ان کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی، اور یقیناً آپ کو ایک اچھا پروگرام دیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے K2 ٹیلی ویژن کو ٹائم دیا۔ اچھا، میں ظاہر ہے اس میں سوال میرے پاس زیادہ ہیں، وقت کم ہوتا ہے تو میں مزید تمید نہیں باندھتا۔ اس وقت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہزارہ یونیورسٹی ہے، جو یونیورسٹی کیمپس ہے، اس میں تقریباً کتنے طلباء جو ہیں وہ زیر تعلیم ہوں گے؟ جی، پہلے تو آپ کو بہت شکریہ ادھر آنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے لاسٹ ویک بھی آپ سے ملنا تھا، لیکن میں پشاور چلے گیا اور پھر جو نا ٹائم نہیں مل سکا۔ اس وقت 10,000 اسٹوڈنٹ آن کیمپس رجسٹرڈ ہے، لگ بھگ 10,000 سے بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ یہ وہ اسٹوڈنٹ جو رجسٹرڈ ہے۔ ویسے ہمارے پاس کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے جو آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹ ہوتے، جس نے اپنا کمپلیٹ کیا ہوتے کورس ورک، وہ تھیسس لکھتے یا ریسرچ پروجیکٹ، تو اس کو سب کو ملا کے پھر 12,000 اسٹوڈنٹ کیمپس میں ہے۔ لیکن 10,000 اس سیمسٹر میں، جو جس کو ہم کہتے ہیں فال سیمسٹر 22، اسی میں رننگ سیمسٹر ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تقریباً 12,000۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے جو کالجز میں ہے، ایفیلیٹڈ کالجز سے، اس میں بی ایس پروگرام ہے، آپ کو پتہ ہوگا، وہ سب ملا کے پھر اسٹوڈنٹ ہمارے 16,000 بنتے ہیں۔ وزی میں بھی 6,000 اسٹوڈنٹ اس وقت رجسٹر، ایفیلیشن جن کالجز کی آپ کے ساتھ ہے اس میں۔ اچھا سر، پروگرام ہے 4 سال پروگرام ہے۔ اوکے، آپ کے پاس 10,000 اسٹوڈنٹ تو یہاں پہ موجود رہتے ہیں، تو اتنی آپ کے پاس اکاموڈیشن، آپ کی بلڈنگز اتنی ہیں کہ وہ ضروریات پوری ہو سکیں؟ جی، اللہ کے فضل سے کافی جو یہ 20 سال لوگوں نے اس یونیورسٹی میں محنت کی ہے بلڈنگ کے لحاظ سے، مختلف بہت کی حکومتوں نے بھی کافی، ارتھکویک کو آپ کو پتہ اس میں تو پورا ڈیمیج ہو گیا تھا 90%۔ اس کے بعد کافی جو نا گورنمنٹ نے کچھ ایک پروجیکٹ دیا تھا، اس میں 8 بلڈنگز بنا لی، اکیڈمک بلڈنگز، بہت اچھے بلڈنگز ہے، وہ 2018 میں کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ ہمیں ملا ہے 1.7 بلین روپیز کا، جس میں ہاسٹلز بن رہے۔ ہاسٹلز کا ہمیں ایشوز ہے اس وقت، بوائز ہاسٹل کا کافی سیریس ایشوز ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی ہاسٹل ہے جو 2 بلاک ہے، اس میں کوئی 350 تک اسٹوڈنٹ ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ گرلز کا علیحدہ ہے، وہ گرلز کا بھی ہے، وہ اس میں 700 تک ہے، وہ زیادہ ہے، اس میں 4 بلاکس ہے، تو اس میں 700 اسٹوڈنٹ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں اس وقت، اور بوائز میں اس وقت 350 تک ہے۔ لیکن 6 اور ہاسٹلز بن رہے، یہ اچھی خوشی کے بعد اسٹوڈنٹ کے لیے کہ 6 ہاسٹل بن رہے، جس میں 3 لڑکیوں کے ہے اور 3 لڑکوں کے ہاسٹل۔ اس کے آلریڈی کنٹریکٹ وغیرہ دے چکے، پیسے بھی مل چکے، اور وہ آن گراؤنڈ ہے اس وقت، تقریباً اس کے بیسمنٹ وغیرہ بن گئے۔ ہزارہ کی بات کریں تو آپ کے علاوہ بھی 2 یونیورسٹیز اور کام کر رہی ہیں، ایبٹ یونیورسٹی ہے اور ہری پور یونیورسٹی بھی ہے، تو آپ کی جو جورسڈکشن ہے وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد اور ہری پور کٹ کے ہیں؟ باقی سارے ڈسٹرکٹ ہمارے پاس ہے، باقی اضلاع آپ کے ساتھ ہیں؟
अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अब आता हूँ एजुकेशन साइड पे। BS का जो निज़ाम लाया गया, पुराने निज़ाम को बदल के कि जी इंटरनेशनल ये सारा BS चल रहा है, लेकिन इसके कुछ यहाँ पे मसाइल भी पैदा हुए हैं। पुराने निज़ाम में ये होता था कि अब जो एक स्टूडेंट है उसके एग्ज़ाम होते थे, उसे नहीं पता था कि ये उसके पेपर कौन चेक कर रहा है, कहाँ पे हो रहे हैं। BS का जो टीचर है वो खुद ही अपने बच्चों के पेपर भी चेक कर रहा होता है, खुद ही मार्किंग भी कर रहा होता है। टीचर्स पे भी प्रेशर होता है स्टूडेंट्स का, और जनाब टीचर की मर्ज़ी भी उसमें शामिल होती है। तो इसके जो नुकसानात हैं, इसका भी कोई हल है या नहीं है? तो ये आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत एकेडमिक क्वेश्चन है। अब ये एक सीरियस इशू तो है, ये सिर्फ पे तो नहीं है, बाहर दुनिया में भी है। सेमेस्टर सिस्टम जब से आए हैं, अब इसमें काफ़ी सर्वे होगी मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो डेवलप कंट्रीज़ में, वो भी देख रहे हैं, क्योंकि असेसमेंट जो टीचर्स का असेसमेंट है वो स्टूडेंट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हम पूछते हैं कि टीचर किस तरह है, उसका मार्किंग होती है, उसी पे उसको प्रमोशन में भी वो कभी कभी काउंट होते हैं। तो उस वजह से टीचर भी प्रेशर में होते हैं, वो भी कोशिश करते कि अच्छे ग्रेड्स दे दें, और जो अच्छे ग्रेड मिलेंगे तो उसको भी स्टूडेंट पसंद करते हैं नॉर्मली। तो ये तो इंटरनेशनल वो है कि सेमेस्टर सिस्टम में ये कुछ इश्यूज तो है, लेकिन उसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ, बहुत ज़्यादा 1-to-1 इंटरेक्शन होते टीचर का, और बहुत क्लोज इंटरेक्शन है। टीचर इज़ अ किंग ऑफ द क्लास, तो काफ़ी उसका रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट, और उस रिस्पेक्ट की वजह से फिर स्टूडेंट भी सीखते भी है बहुत। तो मुझे लग रहा है कि नुकसानात भी है, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। इसमें एकेडमिक फ्रीडम ज़्यादा होते हैं टीचर के पास, और इस लिहाज से नॉर्मली सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप एक टीचर को खुद इन्हें इंडिपेंडेंट करवाते कि ये कोर्स से आपने पढ़ाना होगा, अब इसी कोर्स का आप खुद ही जिम्मेदार है, और उसी पे उसका असेसमेंट भी होते हैं, नहीं है कि स्टूडेंट असेसमेंट करते। तो मैंने अक्सर देखा उसके ऊपर बॉडीज भी है। पहले जो पेपर्स बाहर बनते थे, हमने ऐसा किया है आज़ाद यूनिवर्सिटी में कि कुछ डिपार्टमेंट में, सब में नहीं कि एक्सपेरिमेंटल करें, उसमें एक एक्सटर्नल बोर्ड बना लिए, एग्जामिनेशन बोर्ड। उसमें वो क्या हम चेक करते, ये चेक करते कि एक अगर रिजल्ट आ गया फाइनल रिजल्ट, उसमें ये देखते कि बहुत ज़्यादा एस तो नहीं है, एस ग्रेड होते, 20 ग्रेड होते, या बहुत ज़्यादा एफ तो नहीं है। तो ये हम लोग एग्जामिनेशन बोर्ड से करवाते। उस एग्जामिनेशन बोर्ड में हमने एक्सटर्नल मेंबर्स भी बैठा दिए कि दूसरी यूनिवर्सिटी से भी लोग आ जाए बैठे, तो वो एक काफ़ी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे भी। उसमें हम वैसे भी हम ऐसा करें कि हमने कंप्यूटराइज सिस्टम बना के उसमें ये भी देखते कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर एस बहुत ज़्यादा हो, या एफ बहुत ज़्यादा है, या बी ज़्यादा है, या सी ज़्यादा है, तो उस रिजल्ट को हम आगे नहीं भेजते, पहले उसको रिव्यू करवाते, उसको डीन से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। ये तो यूनिवर्सिटी की बात हो गई। आपके साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो ज़ाहिर है उनका टीचर वहाँ पे असेस कर रहा होता है उनको, लेकिन जो फ़ीस वो बच्चा देता है, एग्जामिनेशन फ़ीस जो होती है वो यूनिवर्सिटी को आ रही होती है, और यूनिवर्सिटी का उसमें कोई किरदार हमें नज़र नहीं आता। तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि पैसे यूनिवर्सिटी ले रही है और असेसमेंट लोकली हो रही है? एक तो ये है कि अभी हमने कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा किया हमने, उसके एक तो डेटा हमारे पास है, सारे जो एफिलिएटेड कॉलेज है, शायद ये वाहिद यूनिवर्सिटी है KP में कि हमने एफिलिएटेड कॉलेजेस का डेटा भी साथ रखना स्टार्ट किया। वो इसलिए स्टार्ट किया कि आज से 10-20 साल बाद जब वेरिफिकेशन होगी किसी डिग्री का, तो किसी को पता नहीं होगा कि स्टूडेंट कहाँ था। तो हमने इसलिए उसको मतलब जिम्मेदारी लेके हज़ार यूनिवर्सिटी ने, और उसका डेटा हमने इधर स्टोर कर दिया। तो जो भी अगर 20 साल बाद भी किसी को वेरिफिकेशन हो तो उसको कॉलेजेस में नहीं जाना होगा, वो इधर आके उसको इधर से एक वन विंडो में इंशाल्लाह मिलेगी वेरिफिकेशन। तो इस वजह से डेटा रखना हमने स्टार्ट किया। एग्जाम में हम इन्वॉल्व है, कुछ कॉलेजेस के एग्जाम में तो हम जाके खुद कंडक्ट करवाते। अच्छा। उसमें 40% तो वैसे भी हम कंडक्ट करवाते, तो वो चेकिंग भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए उसका फ़ी जो लेते वो जस्टिफाइड है वहाँ, क्योंकि फ़ी तो बहुत कम लेते हैं नॉर्मली, मैं तो इतने ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस का हमने सिलेबस, हमने ट्रेनिंग भी किया। आप कॉलेजेस से आप पूछ सकते हैं, जो हज़ारा डिवीज़न या जो हमारे साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस है, उसके हमने 3-4 दफ़ा प्रिंसिपल्स के साथ में खुद भी मीटिंग किए है, और उसको सेमेस्टर सिस्टम भी समझाए, उसको हम करिकुलम पे हम उसको ट्रेनिंग दे चुके हैं, कोऑर्डिनेटर को बुला के था, उसको भी हमने ट्रेनिंग दी है कि सेमेस्टर सिस्टम में करिकुलम को किस तरह डिज़ाइन किया होते हैं, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करने क्या हम कर सकते हैं। हमने एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट को ये भी अलाउ किया कि समर के दौरान जो उनके कॉलेजेस में नहीं होते सेमेस्टर, तो हम अपने यूनिवर्सिटी के अंदर उसको अलाउ करें कि वो आके इधर हमारे साथ पढ़े, और उसके एक नॉमिनल चार्जेस है 2000 या 3000। सर
ایک سسٹم تھا BSc MA MSc ایک سسٹم چل رہا تھا, اس کو کنورٹ کر دیا گیا BS میں. اس میں آج جو پرانا ٹیچر ہے جس نے سال سے وہی کچھ پڑھایا ہے, وہ ایک دم سے اس سسٹم پہ وہ ایڈجسٹ ہوئے آ کے. وہ یہ اس میں ایک نئے ایسوسیٹ ڈگری کے نام سے ایک سٹارٹ کیا, 2 سال ایسوسیٹ ڈگری, اور BS بھی سٹارٹ کروا دیے, BA کو ختم کیے. ویسے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ شاید HEC کا یا جس کا, اس کے ساتھ ہم اتنا زیادہ ایگری نہیں تھے اس ڈیسیجن کے ساتھ, کیونکہ اس میں ایک اور جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس تھے اس میں. وہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ میں اسپیشلی فیمیل خواتین جو اسپیشلی جو ہاؤس وائفس ہے یا جو لڑکی وہ باہر نہیں جا سکتی ہے, تو اس کے لیے بہت اچھا ایک ہوتا کہ وہ BA کر لیتا تھا یا BC کر لیتا تھا, تو کافی اچھا تھا پرائیویٹ, وہ نہیں ختم ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ علامہ اقبال کو چلا گیا. اب ہم نے ایسوسیٹ ڈگری سٹارٹ کیا. ابھی اس وقت ہمارے 4-5 کالجز میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام سٹارٹ ہو گیا ہے. یہ پہلے بیچ ابھی گریجویٹ ہو گیا اللہ کی وجہ سے, وہ 2 سال ہے. وہ آجا ایسوسیٹ ڈگری ایسا ایک پروگرام ہے. یہ ایک تو حقیقت تو تھا کہ BA BC کا کوالٹی آف ایجوکیشن کافی لو ہو گیا تھا, وہ اسٹینڈرڈ بہت زیادہ گر گیا تھا. تو اسٹینڈرڈ کو اچھا کرنے کے لیے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا کہ اس ڈگری کا نام ایسوسیٹ ڈگری ہوگی اور یہ سیمسٹر بیسڈ ہوگی, یا اس میں پرائیویٹ نہیں ہوگی کینڈیڈیٹس. تو یہ کالجز میں ہوگی, جس کالجز میں پہلے BA BC تھی, اب وہ جو ہے نا 3-4 سبجیکٹ نہیں پڑھیں گے, اب وہ بہت زیادہ سبجیکٹ پڑھیں گے. انہیں ٹوٹل ملا کے کوئی تقریباً 16-17 سبجیکٹ پڑھیں گے. تو وہ 16-17 بلکہ 20 سبجیکٹ ہوں گے کچھ پروگرام میں, تو 20 سبجیکٹ پڑھیں گے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ BA BC میں 5 سبجیکٹ ہے ٹوٹل, تو ایک تو ایجوکیشن زیادہ ہو جائے گی. پھر ریگولر آئیں گے, ہر ایک سیمسٹر سسٹم ہو گیا, 6 مہینے بعد ایک ایگزام ہوگی. تو یہ اس سے یہ HEC کا یہ ہے پوائنٹ آف ویو کہ اس سے کوالٹی بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ کا ایک بات بہت وہ ہے کہ جو ٹیچر بات ہے جو پڑھاتے تھے BA BC میں, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ابھی. ہم نے اس کے لیے کیا کہ ہماری یونیورسٹی میں جو ہم نے ایگزیکیوشن کیا, ایک تو اس کا ٹریننگ کروا دی کچھ نہ کچھ, دوسرے اس کو بہت آسان بنا لی. وہی جو BA BC پروگرام تھا اس کو ہم نے ایکچولی ایکسٹینڈ کروا دیا کہ وہی سبجیکٹ ہوں گے. اگر کہیں زوالوجی میں MEC تھا تو زوالوجی میں کرتے رہے, کہیں اگر باٹنی میں تھا وہ باٹنی میں کرتے رہے. ہم نے کوئی کمبینیشن بنا لیے, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کوشش کی کہ وہ جو آلریڈی ریسورسز تھے اس کو یوٹیلائز کرے. لیکن جو لوگ پرائیویٹ طور پہ جو پرائیویٹ والا ہے وہ لوگ تو آپ نے کاٹ دیے سرے سے. وہ آپ کی یونیورسٹی میں ظاہر ہے اس کا تو اب ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی ورکنگ کلاس سے کوئی بندہ ہے, وہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کوالیفیکیشن امپروو کرنا چاہ رہا ہے, اس کے تو دروازے بند ہو گئے. یہ ایک اس میں بالکل ہم اس کے لیے اب یہ کریں کہ ایسوسیٹ ڈگری پرائیویٹ بھی ہوگی. پرائیویٹ کے لیے ہم نے دے دیا, اپنا ایکیڈمک کورسز سے پاس کروا دیا. اس میں کیا ہوگا کہ ایگزامس ہوں گے. پہلے 2 ایگزامس ہوتے تھے, اب شاید 4 ایگزامس ہوں گے. انہیں پرائیویٹ ایگزام ہوں گے, ایک مڈ ٹرم ایگزام, سال کے مڈ میں ایک ایگزام ہوگا, ایک سال میں آخر میں, اب اس سے 4 ایگزام ہو جائیں گے ٹوٹل. تو یہ ہم نے ایک اسی کے لیے سینٹر ہم بنائیں گے. ٹیوشن سینٹرز ہوں گے, پرائیویٹ طریقے سے رن ہوں گے, اس سے بزنسز بھی ڈیولپ ہوں گے. ایفیلیشن ایسا ہوگی کہ ایکیڈمک ایفیلیشن جیسے ٹیوشن سینٹر کام کرتے ہیں. بالکل. سر اس وقت آپ کی یونیورسٹی میں تقریباً کتنے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں؟ 37 ڈپارٹمنٹ ہے ٹوٹل. 37 ڈپارٹمنٹ ہے. 37 ہیں, تو مزید گنجائش ہے؟ مزید گنجائش ہے, لیکن یہ بھی چانس ہے کہ کچھ ہم مرج بھی کریں. ہم نے 1-2 ڈپارٹمنٹس مرج بھی کیے, مرجنگ بھی کرے. کچھ زیادہ بھی ہو گئے کچھ ایریاز میں, لیکن کچھ میں ہم کوشش کریں کہ اس کو مرج کر کے, اور اس کے جس طرح پہلے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ہمارے پاس ہیومن جینیٹکس, ایک جینیٹکس تھا اور ایک بایو ٹیکنالوجی, اس سب کو ہم نے ملا کے مرج کر کے ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیا. اس کا نام رکھ دیا بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹکس انجینئرنگ. تو یہ زیادہ اچھا نام ہے, یہ انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم کہتے ہیں کہ جینیٹکس علیحدہ ہو. BS جینیٹکس میں ہوتا تھا, تو اس کو ہم نے مرج کیا اس کو, تو کافی اس کا اچھے ریزلٹس آ رہے. ایک تو ریسورسز شیئر ہو گئے, کم ہو جائیں گے, اس کا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کم ہو گیا. اس سے ہم سوچ رہے سوشل سائنسز میں کچھ ڈپارٹمنٹ کا, لیکن نئے بھی ہم نے اوپن کیے. فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہمارا لیٹسٹ انٹری ہے, ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی اوپن کیا.
अल्लाह के पास से हमें इजाज़त भी मिल गई 100 सीट का पहले BS फार्मेसी BS फार्मेसी ठीक है पाम डी उसको कहते हैं 5 साल का प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा डिमांड था इस रीजन के लिए स्पेशली उसमें अगेन मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करा रही थी हम स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स कि जो लड़की इधर मेडिकल से रह जाती थी तो फार्मेसी वाज नेक्स्ट ऑप्शन वो अवेलेबल नहीं था उस वजह से वो इधर के जो हमारे फीमेल स्टूडेंट थे वो जाते थे इफ्ताबाद या फिर वो पेशावर जाते थे इस्लामाबाद तो काफी कुछ की इजाजत भी नहीं अब वो स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया अल्लाह के वजह से अच्छा वो और 100 सीट हमें मिल गई एक जो माहिरीन तालीम है एक चीज़ एक क्वेश्चन वो अब रेज हो रहा है कि हमारी जो सोशल साइंसेज हैं हम जो पढ़ा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बात अब इंटरनेशनली बहुत चेंजेस आई हैं हमारे एजुकेशन में और दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है लेकिन आज हम उन्हीं सोशल साइंसेज बेस मतलब लोग बाहर निकाल रहे हैं अब जो बंदा माजरत के साथ बहुत से मज़ाहिर है मेरा भी वही सब्जेक्ट रहे हैं कि उर्दू में जिसने मास्टर किया पोलिटिकल साइंस में जिसने मास्टर किया इकोनॉमिक्स में किया मतलब और बहुत सारे हैं इन ये लोग आगे जाके सोसाइटी में इनके लिए मखसूस फील्ड है हर शोबे में ये जा नहीं सकते तो इनको कुछ चेंज करने का कोई है कोई ये वंस अगेन आपने बहुत अच्छे ज़बरदस्त क्वेश्चन किया बहुत तालीम के साथ उसका काफ़ी आजकल है देखो बाहर दुनिया में भी ये जो ना सिचुएशन तो हो जाती है किसी भी प्रोग्राम में आजकल इंजीनियरिंग का भी इवन सिचुएशन हो गया आप देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत कम लोग जाते हैं तो वो इस सिचुएशन में तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है आपने अगर पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा लोग प्रोड्यूस किए तो आगे उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको चेंज करना चाहिए क्या वो पॉलिटिकल साइंस आगे क्या होगा तो ये सोच बहुत कम है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में फिर हमारे पास भी बहुत कम है इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट तो हम तो कोशिश करें कि ये जो लोग हैं जो जितना भी ये जो सोशल साइंसेस के एक तो इसको एक डिपार्टमेंट में हम कोशिश करेंगे कि एक ही डिपार्टमेंट होगा जिसमें इन्हें सपोज एक डिपार्टमेंट का नाम होगा सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट सोशल साइंसेस उसमें सारे लोग एडमिट होंगे वो एडमिट होंगे और डिग्रीज वो स्पेशलाइजेशन होगी उसका ये नहीं वो BS सोशल साइंसेस ही होगी लेकिन उनमें किसी का पॉलिटिकल साइंस में होगा किसी IR होगा कोई सोशियोलॉजी होगा लेकिन इसका काफ़ी रेजिस्टेंस है आपको पता है आजकल पाकिस्तान में तो काफ़ी तो उसमें हम कोशिश ये करें कि अभी जो है हमारे पास उसमें हम 2 किस्म के स्किल्स हम स्किल ओरिएंटेड पे मैं बात ज़रूर करूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि अपने जो करिकुलम है उसको स्किल ओरिएंटेड करें आजकल पूरी दुनिया में एक है नॉलेज बेस्ड करिकुलम जो पहले होता था अब नॉलेज से लोग हट के अब कहते स्किल्स तो स्किल बेस में हम आते हैं अब ये जो पॉलिटिकल साइंस वाला जो है या सोशल साइंसेस है इसके लिए हमने सोचा कि इसका स्किल्स वो हो कि मैनेजमेंट का स्किल हो उसके पास तो मैनेजमेंट के मुख्तलिफ कोर्सेज हम ला रहे थे जिस तरह CSS का ट्रेनिंग करवाने PMS के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हमारा टारगेट यही है कि हमारा स्टूडेंट जाके वो PMS में जाए CSS को ट्राई करे अब इसी तरह और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जिस तरह लॉ के स्टूडेंट है उसको हम कोच करेंगे कि वो जितना जो जजेस के सिविल जजेस का है और इससे मुख्तलिफ किस्म के और सेकंड स्किल उसका IT का स्किल्स इसमें यहीं से कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक पे जाना पड़ गया नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर ब्रेक के बाद एक मतलब फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं शिमला पॉइंट और शिमला पॉइंट आज मौजूद है जी हज़ारा यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद साहब हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं वाइस चांसलर हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी की और तालीम से मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू जारी है यकीनन आपको ये अच्छी लग रही होगी अच्छा सर सोशल साइंसेस की बात की बाकी अच्छा एक मामला और भी हमने देखा है कि अब सोशल साइंसेस जो लोग फारिग तहसील होकर जाते हैं महदूद उनके पास आगे फील्ड होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं एडजस्ट नहीं कर पाते फिर पाकिस्तान में क्लर्कों का एक सैलाब आजकल क्लर्की भी चेंज हो गई है वो पुरानी वाली क्लर्की नहीं कंप्यूटर आ गया सारा अच्छा हम अगर इस पे जाएं जो हज़ारा यूनिवर्सिटी की जुरिस्डिक्शन की मैंने बात की थी कैंपस हज़ारा यूनिवर्सिटी के अपने जो मेन कैंपस है इसके अलावा कोई कैंपस हैं एक बटाग्राम में कैंपस है अच्छा बटाग्राम में एक ECC का प्रोजेक्ट है इसको कहते हैं अम्ब्रेला प्रोजेक्ट ECC के अंडर अब इसमें यह था कि सारे डिस्ट्रिक्ट में कैंपस होना चाहिए या यूनिवर्सिटी होना चाहिए कैंपस तो ECC ने कोई 4 बिलियन या 5 बिलियन रुपीस का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आज से कोई 3-4 साल पहले जिसमें हर एक जिले में जा यूनिवर्सिटी ने वह कैंपस बनाने तो एक बटाग्राम का कैंपस फंक्शनल है टीचिंग स्टाफ मौजूद है बाकी तो बटाग्राम से हट के हम चले जाएं कोहिस्तान है हमारा तो नहीं है वह कैंपस नहीं वहाँ पे नहीं वह एफिलिएटेड कॉलेजेस है
जी, जी। लेकिन कैंपस वहाँ कोई नहीं है। ओके। अच्छा सर, कोई भी इदारा जो है वो ज़ाहिर है पैसों से चलता है, तो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं ज़्यादातर खुद मुख्तार कर दी गई हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग जो है वो कम रहती है। आपके पास क्या सूरत हाल है, फ़ीसों से ही आप अर्न करते हैं या गवर्नमेंट भी कोई फंड करती है? हमारे पास तो अल्लाह के फजल से फंड्स का आपको शायद पता होगा कि सबसे केपी में फाइनेंशियली या गवर्नेंस के लिहाज से बिल्कुल आज़ाद यूनिवर्सिटी नंबर 1 रही, और फाइनेंस के लिहाज से भी। लेकिन हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि बहुत अच्छे मांगेंगे आपसे नहीं, हम और मांगेंगे तो, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। लेकिन ऐसे रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें तो स्काई इज द लिमिट। आपको पता है कि वो बाहर दुनिया में MIT में भी अभी भी उसको चाहिए पैसे, इतना रिच यूनिवर्सिटीज़ है, तो हमें भी पैसे तो चाहिए हर वक्त। रिसर्च के लिए चाहिए, नए बिल्डिंग्स के लिए चाहिए, नए फैसिलिटीज़, टीचर ट्रेनिंग के लिए चाहिए, स्टूडेंट के ग्रूमिंग के लिए बहुत पैसे चाहिए। लेकिन हम अल्लाह के पास इस वक्त काफ़ी इस लिहाज से ओके उसमें है। मतलब हमें कोई फाइनेंशियल हमारे इस वक्त जो ट्यूशन फीस है, जो हमारे अपने रिसोर्स है, ट्यूशन फी है, प्राइवेट कॉलेज से पैसे या एफिलिएटेड कॉलेज से कुछ ना कुछ पैसे हमें हमने एंडाउमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट किए उसी से है। ये सब मिला के इस वक्त हम 56% ये हमारे अपने हैं। अच्छा। और ये जो 44% है ECC के ग्रांट है। तो इस वक्त 1611 मिलियन टोटल है एनुअल बजट, जिसमें 945 मिलियन ये हम अपने तरफ से करें, बाकी कोई 550-560 मिलियन ECC के। स्कॉलरशिप भी आप देते हैं? स्कॉलरशिप भी देते हैं, 2 किस्म हमें स्कॉलरशिप में काफ़ी हमने, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है और आपके थ्रू में शेयर भी करूँगा। इस साल हमने एक नए स्कीम स्टार्ट की स्कॉलरशिप्स का, जितना हमने एंडाउमेंट फंड्स एक बना लिया, स्टूडेंट स्कॉलरशिप एंडाउमेंट फंड। अपने पैसों से हम कुछ पैसे उसमें रख रहे हैं, और उसको इन्वेस्ट किया हमने बैंक में। वो जो इन्वेस्टेड मनी है उसी का कुछ परसेंटेज हम स्कॉलरशिप में दे रहे हैं। वहाँ पे इंटरेस्ट भी आता है? वो इंटरेस्ट हम लेते हैं, और उस इंटरेस्ट के पैसे जो आते हैं उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप से। ये फंड जो है ना इस वक्त कोई तकरीबन 20 मिलियन तक उसमें जमा हो गया, और हम इंशाल्लाह हम सोच रहे कि ये आइंदा 10 साल बाद इतना ज़्यादा होगी कि इंशाल्लाह इस हज़ारे जो मासरा के रीजन में स्टूडेंट है, मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट। हम ये कोशिश करें कि सारे स्टूडेंट, ये लोकल जो एरिया है हज़ारे के, इसके पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है स्टूडेंट की। अब ये रीज़न क्या है कि अर्थक्वेक जब था 15-16 उसमें बहुत ज़्यादा डेथ हो गए थे, अब वो उसका इम्पैक्ट अभी आ रहे हैं। एक्चुअली किसी ने शायद एनालाइज नहीं किया था कि वो बच्चे तो अभी बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी गोइंग है, एंड देयर नो फंड एक्चुअली उसके लिए। तो हम कोशिश करें कि एक एंडाउमेंट फंड बना के, ये बिल्कुल यूनिक हो है, जिसमें हमने टीचर्स से भी रिक्वेस्ट किया अपने पैसों से उसमें पैसे डाल दें, वो भी डोनेट करें। और हमने बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट किए है, कुछ लोग डोनेट करें, जितना भी लोग डोनेट करें हम उस फंड्स में डाल दें। उस फंड्स के इन्वेस्ट किए उसको, उस फंड्स के प्रिंसिपल अमाउंट को हम यूज़ नहीं करेंगे, उसका इन्वेस्टेड मनी से कुछ परसेंटेज यूज़ करेंगे। और वह भी इस वक्त हमने अनाउंस किए, शायद नेक्स्ट वीक इज लास्ट डेट है, और उसमें कोई 10-15 स्कॉलरशिप्स इस साल के लिए हम दे रहे। ये एक तो ये हमारे अपने हैं, ये बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई एम श्योर कि ये जो टीम है आज़ाद यूनिवर्सिटी में, इसके रूल्स बना लिए हमने ऑलरेडी, सिंडिकेट ने पास किए। ये देखो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में हमने काम किए, जो शायद किसी जगह में नहीं होगा, और इसमें पूरे जो लोग बिल्कुल यूनाइटेड हो के उसने ये काम किया कि ये हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज से 10 साल 15 साल बाद तो हम नहीं होंगे, कोई और होंगे, इसको इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरह ये सेंचुरी का बात होती है, आपको पता है यूनिवर्सिटी तो असल में इब्तिदा करनी होती है, इब्तिदा हो गया बिल्कुल करता है। अच्छा सर, एक कोरोना के हवाले से जो बात हमने सुनी और जो मैं रिसर्च कर रहा था, तो पता ये चला कि कोरोना के दौरान हज़ारा यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे रही है, और आपने मतलब ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया भी है और उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं। तो ये क्या होगा, आपकी अपना कोई आपके माइंड में कोई प्लानिंग थी या? ये तो एक तो ये फील्ड, मैं स्टूडेंट हूँ, IT का स्टूडेंट हूँ, मेरा फील्ड भी कंप्यूटर साइंस है। ये तो शायद ये भी एक वजह थी। अब ये एक टेस्ट भी था, मेरा नॉलेज का एक टेस्ट भी था कि जब मैं इधर आके कोविड भी स्टार्ट हो गए, 10 मार्च को मैं आया था, और 18 मार्च से यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए। तो एक तो ये तो एक चैलेंज भी था। तो मैंने कहा कि अपने फील्ड में कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूट करूँ मैं। लेकिन इज़ नॉट ओनली मी, ये तो टीम हमारे पास IT के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काम वाले, 12 बजे तक बैठ के काम करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये मैं यंग लोग हैं मेरे साथ, 4-5 लोग हैं। एजुकेशन नौकरी तो नहीं है ना, ये ना, ये बिल्कुल ये मिशन है, यू आर राइट। तो हमने उसको मिशन समझ के
اور کچھ سسٹم ایسا لائے کہ وہ ایزی ہو, اتنا ایزی گوئنگ کہ میں نے خود اس میں کچھ لیکچرز ریکارڈ کروا دیے. تو وہ لوگوں نے جب دیکھا کہ بالکل آرڈنری کیمرہ وغیرہ یوز کیا, موبائل کا کیمرہ جو ہے, انہیں ایگزامپل کہ یہ جو موبائل ہے اس کے لیے ایک سٹینڈ بنا دیا, وہ سٹینڈ پہ موبائل لگ دیا تو ایک کیمرہ بن گیا. تو یہ کئی لوگوں نے کاپی کیا. اب اس کو کانفیڈنس بڑھ گیا اس کا کہ یہ تو بہت سمپل کام ہے, سمپل لینگویج میں بولو, ہندکو میں بولو, پشتو میں بولو, کوئی ریسٹرکشن نہیں, انگلش میں بولو, جو بھی اردو میں بولو, جس طرح آپ کو ایزی ہے. اور ایک لیکچر ہے جس طرح ایک عام گفتگو کرے اس سے ایک لیکچر کمیونیکیٹ کرے. یہ جب یہ کانفیڈنس آ گیا ٹیچرز میں, اور اس سے یہ ہیزیٹیشن ختم ہو گیا. یہ شاید مین کی تھا. اب یہ پھر سب مل کے ہم نے رزلٹ بھی سامنے گیا, اور اسٹوڈنٹ نے رسپانس بہت اچھا دیا. یہ اتنا اچھا رسپانس میں ایکسپیکٹیشن میں نہیں تھا کہ یہ جو ٹیچر ہے اتنا اچھا رسپانس دیں گے, یا پھر اسٹوڈنٹ اور پھر اس کے پیرنٹس. تو یہ سب مل کے جب سوسائٹی سے سب مل جاتے سارے اسٹیک ہولڈرز, تو وہ کامیاب ہو گیا ہمارا سسٹم. ہم نے 99.9% مارکس ہمیں ملے تھے EGC کے رینکنگ میں. تو ہم نمبر 1 تھے کے پی میں, اس یونیورسٹیز میں جو پبلک والے تھے, جو ڈیورنگ کووڈ کی ہماری تیاری جو تھی. اور پھر ہم نے کئی انوویٹو چیزیں بھی لایا, بہت ڈیٹیل میں نہیں دے سکتا ہوں, لیکن کافی نئے چیزیں ہم نے انٹروڈیوس بھی کیے. آج جو ہمارے کے پی کی یونیورسٹی ہیں, میں اگر ان کی بات کروں تو ہماری ہزارہ یونیورسٹی کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ سیفلی وی آر نمبر 1, لیکن ہم پھر بھی ہمیں کافی ہمارے پاس چیزیں ہیں جو امپرومنٹس کے ابھی بھی چاہیے, گنجائش ہے. لیکن ہم نے رینکنگ 2 رینکنگ میں ہم گئے, انٹرنیشنل رینکنگ میں. یہ پہلے بار ہم ہزارہ یونیورسٹی نے رینکنگ میں, انٹرنیشنل رینکنگ, ایک ہوتے THE ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ, اس میں ہم نمبر 1 رہے کے پی میں. لیکن شیئرنگ کیے وہ مردان یونیورسٹی اور 2-3 اور یونیورسٹی کے ساتھ مل کے, کہ وہ ایک بریکٹس میں آتے ہیں, ہم 500 کے رینج میں ہے تو ہم سب اکٹھے ہیں. لیکن ہمارے نمبر 1 تھا اس میں لاسٹ ایئر رینکنگ میں. یہ سال اگین آ گیا تھا. پورے پاکستان میں ہم 4تھے نمبر پہ تھے, 4تھ نمبر پہ آئے تھے پاکستان تمام یونیورسٹی میں. قائد اعظم اور کامسیٹ وغیرہ کے بعد ہم تھے. تو کافی رینکنگ میں ایک اور رینکنگ سسٹم تھا جس کو کہتے انڈونیشین یونیورسٹی رینکنگ IU. یہ گرین میٹرکس ہے جو یونیورسٹی کے ساتھ سسٹینیبلٹی, کہ اس کے ساتھ لینڈ کتنا ہے, بلڈنگز کتنے ہیں, پیسے کتنے ہیں, اس کا پالیسی پلاننگ, اس میں ہم نمبر 1 ہے کے پی میں. اللہ کے پاس سے کے پی میں نمبر 1 ہے, پاکستان میں 13 نمبر پہ. جب ہم کے پی کی بات کرتے ہیں, اور کے پی میں ہمارا جو ماحول ہے خاص طور پہ ہمارا ایک مذہبی ماحول ہے, اور بچیوں کے بارے میں خاص طور پہ لوگ ذرا وہ اپنی بچیوں کو کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا چاہتے. لیکن ہماری یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن ہے, مجبوری ہے کہ سیپریٹ یونیورسٹی کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ایسی پاسبلٹی ہے نیئر فیوچر میں کہ آپ لوگ بچیوں کے الگ لیکچر ڈیلیور ہوں, کیمپس بچیوں کا الگ ہو اور بچوں کا الگ ہو جائے؟ یہ خواہش ضرور ہے, یہ تو میرا بھی خواہش ہے. آپ بالکل ادھر کافی کنزرویٹو سوسائٹی ہے, اور ہم اس کا عزت کرتے ہیں کہ جتنا ہم نے ایک کوشش بھی کیا تھا کہ ڈریس کوڈ کے بارے میں بھی, کہ ایک ڈریس کوڈ ہو فارملی. یہ ایک کیمپس کا بھی ہے, بڑا ایشو چلا, لیکن ایک کیمپس کا بھی وہ ہے, ویمن کیمپس کا. یہ بالا کوٹ کے ساتھ ایک کیمپس بنانے کا بھی ہے. تو وہ بھی کیسے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. ہم نے اپنے طرف سے وہ کے دیے اس میں کہ وہ اگر بنا لے تو ہم چلا سکیں گے. تو ایک کیمپس ہونا چاہیے. دیکھو یہ والا سوسائٹی جو اس میں اگر ہم ایسا کریں کہ ایسا اقدامات کریں, یہ گورنمنٹ کو چاہیے, ہمیں بھی چاہیے کہ مل کے ایک کیمپس ہونا چاہیے ہزارہ میں, ایک بلکہ ایک قومی یونیورسٹی ہونا چاہیے, الگ ایک یونیورسٹی خواتین کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ مینی پیپل کہ وہ نہیں جاتے گو ایجوکیشن, تو ہمیں اس کو ایجوکیشن تو دینے. تو ایجوکیشن دینے کے لیے اگر ایک علیحدہ کیمپس ہم بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن the other one will be quite interesting کہ ہم نے within the campus ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سیپریٹ کلاسز ہو, اور کچھ طریقہ کریں گے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے ڈسپلن بہت اچھا وہ کیا ہے. اس یونیورسٹی میں کافی آپ نے وزٹ بھی کیے ہوں گے کہ ہم کوشش کریں کہ بہت ڈسپلن میں رہے. ہم نے ایک لیول میں رہے اسٹوڈنٹ جو نا فیمیل میل. کچھ ہم نے کوشش کی کہ کچھ چیزیں اس کے علیحدہ بھی ہو, جس طرح ہاسٹلز علیحدہ ہے, لڑکیوں کے ہاسٹل جو ہے نا علیحدہ کے ساتھ ساتھ وہ اسپورٹ ایکٹیویٹیز بھی ہم نے کریٹ کیے اندر اس میں, تاکہ وہ شام کو اگر اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے. اب بھی ہم کوشش کریں کہ وہ ایک لائبریری کا بھی کوشش کرے کہ اندر ایک ریڈنگ روم ہو, کہ لڑکی اگر رات کو پڑھنا چاہتے تو لائبریری میں جا کے پڑھے ہو.
वो भी ये separate सेपरेट अपने उसमें, और उस प्रेमिसेस में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये है कि ऐसा भी नहीं कि उस पर पाबंदी है, अगर वो लड़की जाना चाहते बाहर तो वो मेडिकल सेंटर अगर है तो वो वार्डन है, उसका अपने एक सिस्टम है, उसी से हो के वो जा भी सकते। अगर मैं सर पूरे हज़ारा की अगर बात करूं, सेपरेट यूनिवर्सिटी की हम बात करें, आप बालाकोट की बात कर रहे हैं, एबटाबाद में पुराना अयूब मेडिकल कॉलेज जो बिल्डिंग थी वो बाद में वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज बन गया। वो इतनी बड़ी जगह है कि वहाँ पे सेपरेट वेमेन यूनिवर्सिटी जो है वो बन सकती है। अगर किसी जगह पे कोई ऐसी बात हो, मैं एक सजेशन आपको दे रहा हूँ, तो आप इस बात को ज़रूर चलाएँ कि जो गर्ल्स कॉलेज मंडियाँ है, जो पुराना अयूब मेडिकल कॉलेज है, वो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ बिल्डिंग भी है, कि वहाँ पर एक सेपरेट यूनिवर्सिटी बना दें। वहाँ पर जो बच्चियाँ मानसेरा से जाएँ, हरीपुर से आएँ, वो हॉस्टल में हो, बाकी बच्चियाँ आके पढ़े। मैं अगर मैं हज़ारा में इज डिजर्विंग एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए वमेन, जो है ना इस वक्त है नहीं, पेशावर में हो गया और कुछ जगहों में सवाबी में, मर्दान में, तो ये तो इज ह्यूज डिवीजन, इसमें तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, मतलब जो बच्चियाँ घरों में पढ़ लिख के बैठी हुई हैं उनको जॉब्स भी मिल जाएंगी और बच्चियाँ पढ़ भी जाएंगी। अच्छा सर, आपने रिसर्च की बात की थी, पीएचडी की ज़रा आप डॉक्टरेट की डिग्री भी देते हैं, उसमें एक सवाल है, सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटियों के वाले से एक सवाल है कि जो निगरान होते हैं, जो मतलब एक पीएचडी का जो स्टूडेंट है उसके जो निगरान होते हैं, वहाँ पे पसंद नापसंद चलती है, और वो मतलब जिसने ज़्यादा पार्टियाँ कर दी, जिसने ज़्यादा तोहफे तायफ दे दिए, वो जनाब ऐसा है। मैं भी कि कुछ केसेस में अगर हो, लेकिन ऐसे कि एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर क्विक। आप जब बीएस में किसी को भेजते हैं ना तालीम के लिए, अपने बच्चे को या मैं भी, तो नाम इसमें यूनिवर्सिटी का देखते हैं, नाम इन्हें एक्सपोर्ट कैम्ब्रिज हो गया या इस रीजन में 1000 यूनिवर्सिटीज बने, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को देखते हैं बीएस लेवल पे। जब आप एमएस लेवल पे, एमफिल लेवल पे किसी को भेजते तो हम फिर डिपार्टमेंट को देखते हैं, फिर यूनिवर्सिटी का ज़्यादा नहीं देखते लोग, फिर देखते हैं कि डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी है या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज बहुत अच्छी है। और पीएचडी के केस में फिर हम सुपरवाइजर को देखते हैं, ये उसमें ना यूनिवर्सिटी होती है ना डिपार्टमेंट। देखो इधर से अगर कोई बंदा इकनॉमिक्स में पीएचडी करेंगे, डॉक्टर यूनस है बांग्लादेश में नोबेल laureate है, तो वह ये नहीं देखेंगे कि वो किस यूनिवर्सिटी में है, न वह डिपार्टमेंट देखना होगा, जाए तो वह भेजेंगे। तो ये सुपरवाइजर ओरिएंटेड होते पीएचडी, इसमें होती सुपरवाइजर के पास, तो ये सुपरवाइजर के पास फ्रीडम है, तो उसमें ह्यूमन नेचर है, लाइकिंग डिसलाइकिंग जरूर होती है, और उसमें शायद कभी ये सभी हो गया हो तहाइफ वगैरह का, ये मैं डिनाई नहीं करता बिल्कुल टोटली, लेकिन हमने काफ़ी उसको जर्नलाइज किया अपने सिस्टम को। हमारे पास एक बोर्ड है जो केपी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी है, पाकिस्तान में भी है, ASRB उसको कहते हैं, एडवांस रिसर्च स्टडी बोर्ड उसको कहते हैं। उसमें वीसी खुद बैठते, मैं बैठता, उसमें सब लोग के प्रपोजल आके, जो भी थीसिस लिखने उसने एक प्रपोजल देने, वो प्रपोजल आके 8-10 बंदों के सामने उसको डिफेंड करना होते, और उसमें सुपरवाइजर नहीं होते उस बोर्ड में, उसमें एक्सटर्नल मेंबर्स भी है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, वो बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो ये नहीं देखते किसका स्टूडेंट है, किसने उसको भेजा है, वो टॉपिक को देखते कि टॉपिक सही भी है नहीं है, तो वहाँ से निकलना बहुत इजी नहीं है। एक थीसिस की अगर हम बात करें, थीसिस में रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड थीसिस है, बंदा रिसर्च करता है मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से, लेकिन आजकल जो एक कॉमन चीज़ हम देख रहे हैं कि वो कॉपी पेस्ट वाला सिलसिला चल रहा है, जो सुपरवाइज़र है वो भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और बच्चे जो हैं वो कॉपी करते हैं मुख्तलिफ लोगों को कॉपी करके, तो वो आगे वो अपना थीसिस जो है वो सबमिट कर देते हैं। ऐसा ये असल में जो 3 एनिमीज है ना स्टूडेंट के आजकल, एक का सेलेक्ट, कॉपी एंड कट एंड पेस्ट, ये तो 3 एनिमीज है ना, ये तो बहुत मशहूर एनिमीज बन गए। ये स्टूडेंट के एनिमीज है, इसको मैं एनिमीज कहता हूँ, ये स्टूडेंट को अवॉइड करना चाहिए, और ये कॉपी का सिलसिला भी होते हैं, ये है ये, लेकिन हम 2 चीज़ें हम कहते हैं स्टूडेंट को कि पीएचडी या किसी रिसर्च में 2 चीज़ें में एक होना चाहिए, या क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज या एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज। जब हम थीसिस देखते हम देखते कि इस 2 में एक काम तो किया हो, अगर क्रिएशन नहीं किया हो तो एडिशन तो किया हो, तो हम कोशिश करते कि एडिशन हो। लेकिन ये है कि देखो सारे पीएचडीज, इवन ऑक्सफोर्ड में भी जाते, कैम्ब्रिज में भी जाते, सारे पीएचडीज डिस्कवरीज तो नहीं बनती है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं लिटरेचर में, लिटरेचर में एक गैप होते, उस गैप को फिल करना होते। अब ये सारे थीसिस मिल के डिस्कवरी की तरफ जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरा से थीसिस होगा तो उससे डिस्कवरी होगी, मैं भी हम 10 बंदों का थीसिस मिल के डिस्कवरी हो जाती है, लेकिन वो एक के पास नहीं होते, लेकिन उस
उस एरिया में इतना नॉलेज हम क्रिएट करवाते, उस एरिया में इतना नॉलेज हम ऐड करवाते कि उससे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। वो एनालिसिस अगर हम करें तो सारे हमारे थीसिस पाकिस्तान में उसने काफ़ी डिस्कवरी किए होंगे, लेकिन हम चाहेंगे उस एनालिसिस को नहीं देखते, हम ये देखते कि इंडिविजुअली किया उसने। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमने जितना इधर थीसिस प्रोड्यूस किए हैं उसमें काफ़ी हमने मसाइल भी हल किए, लिटरेचर के मसाइल हल किए, नॉट नेसेसरीली कि डूडियाल में बाहर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, लेकिन हमने उस एरिया के लिटरेचर में ज़रूर एडिशन। इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक पे जाना पड़ गया नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है जी शिमला पॉइंट, और आज हम हज़ारा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, एक थीसिस तैयार हो जाता है, जब मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, वो तैयार हो जाता है, वो उससे आगे सोसाइटी को, हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होता है? बैनुल-अक़वामी हम देखते हैं कि थीसिस अगर किसी कोई आ गया किसी स्कॉलर का, तो उससे आगे मुख्तलिफ इदारों को भेजा जाता है। हमारे यहाँ सुना डप हो जाते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर ही। ये तो बिल्कुल है, बात सही है आपका, लेकिन ये बात भी कई जो है ना थीसिस, मैंने आपको पहले भी कहा ब्रेक से पहले कि ये ज़रूरी नहीं कि एक थीसिस जो है ना एक एरिया में एक ही थीसिस हो। नाम ही क्या होते हैं, सपोज एक डिपार्टमेंट में हमने देख के एक इशू है, जैसे एक कंप्यूटर साइंस में एक इशू है कि साइबर सिक्योरिटी इज़ अ इशू, कि नए आगे वायरसेस आ गए। अब उस वायरसेस को एक बंदे की थीसिस से काम नहीं होगा, वो 4-5 बंदे उस ग्रुप में मिल के थीसिस कर दे, उसके बाद वो कोई ना कोई सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मैंने दिए, एक आपने दे दिए, एक उसने दे दिया, वो सब मिला के एक सोल्यूशन तो प्रोवाइड करते उसमें। वो सब जब कलेक्टिवली देखते हैं हम तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। लेकिन एक इंडिविजुअल थीसिस में जाके एकदम कमर्शलाइजेशन इज इशू। हम थोड़ा सा पाकिस्तान में रिवर्स वाला है ना काम, पहले हम काम कर लेते, फिर उसके बाद उसके लिए कस्टमर ढूंढते। पहले कस्टमर ढूंढना चाहिए, ये अगर ये हम कर ले पहले कि भाई सोसाइटी में अगर इशू है, मैं जाके पहले डिग आउट करूँ कि सो एंड सो इज इशू, फिर उस पे काम करें। हम काम कर लेते, फिर उसके लिए कस्टमर ढूंढते। अब देखो, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बना ले, कोई फिर खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो कस्टम ओरिएंटेड नहीं होगा। तो ये कमी तो ज़रूर है। लेकिन आजकल एक यूनिवर्सिटीज़ में आपने सुना होगा एक ऑफिस बन गए ओरिक के नाम से, वो RIC, ये है ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। ठीक है, ये एक ऑफिस है, उसी में हम नॉर्मली यही करते कि वो प्रॉब्लम्स ढूंढते हो जाके इंडस्ट्री में। इस वक्त हज़ारा यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 70-80 प्रोजेक्ट्स है जो ECC ने हमें दिए है। और एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है इस इलाके के लिए, उसको हम कम्युनिटी टूरिज्म कहते हैं जी। ये 3.5 करोड़ रुपए का हमें प्रोजेक्ट मिले, 35 मिलियन का। सही। इसमें हम क्या करें कि इस इधर टूरिज्म का आपको पता है कि काफ़ी आजकल वो है। अब एक कोविड के बाद तो बिल्कुल एक इल्गार होगी, इस साल भी हमने देख लिया था, नेक्स्ट ईयर भी आप देखेंगे। तो हम कोशिश ये करें कि लोकल कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व कर दें। अब अगर किसी का घर है, उसमें कमरा है उसके साथ, जिसको बैठक कहते, अगर वो स्पेयर कर सकते तो वो बैठक स्पेयर करके एक एप्लीकेशन होगी कंप्यूटर, उसमें वो दे देगा कि मेरे साथ एक बैठक या 2 बंदों का जगह है। वो जब लोग आएंगे टूरिस्ट, वो अपने वो एप्स में देख चेक कर लेंगे कि भाई सो एंड सो प्लेस में, शिंक्यारी में या किसी और जगह में एक जगह है जिसमें ये है, अब ये इसका कास्ट है, वो उसको खुद ब खुद वो डायरेक्ट उसे लिंक करके वो चला जाएगा वहाँ। हमने उसी जहाँ उसने रिजर्व की एक बैठक या एक कमरा, उसको हमने ट्रेन करना होगा। ठीक है, तो हमने ट्रेन किया होगा उस बंदे को कि हाउ टू डील विद द पीपल, वो हमारे साथ लिंक होगा। तो इसको कहते हैं हम कम्युनिटी टूरिज्म। ये स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसके 35 हमें मिलियन ECC से मिले। अच्छा। और ये हम जाके कोई 40-50 लोग इस पे काम करें, ठीक है, ट्रेनिंग भी करें, आइडेंटिफिकेशन करें। 3 साल का टोटल प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जस्ट BNB है बाहर दुनिया में, उसी एक मॉडल है। ठीक हो गया। वो उसको ये प्रोजेक्ट हम ये भी करें साथ साथ। अच्छा सर, फिर आते हैं हम BS लेवल पे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की और ख़ासतौर पे बड़ी यूनिवर्सिटी में कराची की मिसाल है, बाकी वहाँ पे 2-2 या 3-3 शिफ्ट्स काम कर रही हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी की क्या पोजीशन है? इस वक्त सिंगल शिफ्ट है, लेकिन हम इस वक्त 5 बजे तक ऑपरेट करें। हमारा जो स्ट्रेंथ है वो 10,000 प्लस हो गया है। तो इस बात हमारे क्लासेस आप मगर 5 बजे में बच्चे आते हैं, ग्रुप में आते हैं, उसमें हमने टाइम टेबल ये सब बनाए होते हैं। जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर के हमने कोशिश की पहले 3 दिन में उसका टाइम टेबल है, ठीक है, वो 3 दिन में पार हो के ताकि उसको 2 दिन मिले।
और ट्रांसपोर्टेशन का भी उसको फ़ायदा हो। जी हाँ। इससे बाकी लोग हमने कुछ इवनिंग में हमने मास्टर्स प्रोग्राम के यूएस स्टडी को इवनिंग में डाल दिया। ठीक है। इवनिंग मीन्स के 2 बजे के बाद वो 5 बजे तक है। लेकिन अच्छा। सेकंड शिफ्ट पे हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। इवन वीकेंड का प्रोग्राम भी हम सोच रहे अच्छा। हैं, क्योंकि सैटरडे संडे को जी जी पूरे जो ना कैंपस खाली होते हैं। ठीक और है। हमारे पास अल्लाह के बस इस वक्त 18 बिल्डिंग्स है एकेडमिक्स। अच्छा 18 बिल्डिंग्स है जिसका क्राउड ये है कोई 6 लाख स्क्वायर फीट है। अच्छा यानी 6 लाख है। स्क्वायर फीट इज अ ह्यूज यूनिवर्सिटी। जी हाँ जी हाँ। तो ये पूरे जो ना सैटरडे संडे को कुछ नहीं होते। तो हम कोशिश करेंगे कि अब सैटरडे संडे वीकेंड प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले जी। हैं। और सेकंड शिफ्ट हमारे 5 बजे तक हमने पहुंचा तो दिए। इसी स्टाफ के साथ कंटिन्यू इसी करेंगे के या और इसी provide स्टाफ को करें? ऐसा करेंगे कि उसके लिए मॉडल ये है जिसे हम समर में करें। समर में हम पेमेंट बेसिस पे करें, कंपनसेट कर लेंगे कंपनसेट आप इसे। करेंगे। ठीक ये है। स्टाफ अगर आते तो उसको पैसे अच्छा मिलेंगे। ये टीचिंग हायरिंग का जो तरीका कार है वो क्या है आपका, कि बेसिक क्वालिफिकेशन कितनी है एक टीचर के लिए और क्या किस तरह आप हायर करते हैं? मैं उसमें तो ये है कि हायरिंग वाला प्रोसेस एक ट्रेडिशनल तरीका है पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में, केपी में भी। जी। वो तो काफ़ी एब्सोल्यूट तरीका है टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत पुरानी वो है। वो लिखा है एक किताब में लिख दिया कि इसी तरह करना होगा। उसमें कोई फ्रीडम नहीं है हमारे पास। ठीक है। अब ये शायद एक बहुत सीरियस इशू है, जी जी क्योंकि फैकल्टी हायरिंग जो है ना वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो फिक्स चीज़ें हैं। वो स्किल उसमें होना चाहिए, उसमें इंटरव्यूज हो। अगर पोलिटिकल जो इसमें मतलब मुदाखलत है वो इसलिए कम है कि वो लिखा है सब चीज़ें। 80% मार्क्स आप जो है ना उन्हीं को फॉलो करते हैं वो मतलब? वो हम उसको उसके बगैर तो जा नहीं सकते ठीक ना। है। वो तो अगर नहीं फॉलो करेंगे तो वो लीगल पे इश्यूज बनते हैं। अच्छा सर एक मामला और आपकी यूनिवर्सिटी में है, आमतौर पे जो भी बंदा आता है प्रोफेसर है असिस्टेंट प्रोफेसर है जो भी है टीचिंग असिस्टेंट है वो प्रमोशन के लिए ज़ाहिर है कि हमारी प्रमोशन होगी हम आगे जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी का एक मसला जो है कि टीचिंग असिस्टेंट साल से बैठे हुए हैं तरक्की के इंतजार में, उनको आप प्रमोट नहीं कर रहे। ये टीचिंग असिस्टेंट एक कैडर बना था कई किसी वक्त में, और अभी उसको डाइंग कैडर कहते हैं आजकल। जी। मतलब उसमें ये है कि आगे हायरिंग नहीं हो रही है उसी कैडर पे। उसमें जो लोग निकल जाते हैं वो पोस्ट भी खत्म हो जाती है। तो उसके हायरिंग वैसे भी टीचिंग में किसी जगह भी प्रमोशन नहीं है। लेक्चरर्स का भी प्रमोशन नहीं है। लेक्चरर्स हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ये भी प्रमोशन नहीं है। ये सारे री हायरिंग होती है ना। नहीं पहले तो लेक्चरर आते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। लेक्चरर्स अगर है इधर जी उससे नीचे टीचिंग असिस्टेंट है जी हाँ। इन्हें उस कैडर में। ठीक है। तो लेक्चरर्स के लिए भी आगे प्रमोशन नहीं है, वो दोबारा अपॉइंटमेंट है उसका। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नए सिरे से हाँ appointment नए है। सर से अपॉइंटमेंट तो ये अच्छा। सब के लिए है। अच्छा टीचिंग असिस्टेंट का तो नहीं है वो तो हमें वो, लेकिन इसका भी नहीं है। अच्छा लेकिन वो टीचिंग असिस्टेंट का एक इशू जो है वो ये है, जो जी। स्पेसिफिक इशू है टू आज़ाद जी, यूनिवर्सिटी, जी। उसका इशू ये है कि वो स्टक हो गए बेचारे तौर से, कि उसको जो ना कोई गाइडेंस नहीं है। जी हाँ। हमने उसके लिए काम किया है कि उसका एक्सपीरियंस को एज ए टीचिंग कंसिडर किया। ठीक है। पहले एज ए टीचिंग कंसिडर नहीं उनकी होता था। क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन ठीक है उसका, लेकिन एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता था एज ए जी टीचिंग। हाँ। तो वो आगे अप्लाई नहीं कर सकते जी थे। हाँ। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 10 साल चाहिए या 5 साल जी चाहिए, हाँ। या एसोसिएट के लिए, तो वो उसके लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट नहीं होते। जी हाँ। वो अभी हमने काउंट करना स्टार्ट किया उसका। अच्छा, अभी वो start हो अब गया। उसका स्टार्ट हो गया, तो अब अच्छा। वो आगे जा सकेंगे, लेकिन री अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है। लेक्चर्स का भी री अपॉइंटमेंट है। सिर्फ एक नए स्कीम ईसीसी ने किए है, आपको शायद पता होगा, टीटीएस जिसको कहते जी, जी। हैं, टेन्योर ट्रैक, जी। उसमें प्रमोशन है। अच्छा उस केस में अगर एक बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाते तो 6 साल बाद वो एसोसिएट बनेगा, प्रोवाइडेड कि उसने अपने रिक्वायरमेंट्स पूरे किए। जी हाँ। एसोसिएट के बाद वो फुल प्रोफेसर पे जाएगा 4 साल बाद, जी हाँ। अगर उसने रिक्वायरमेंट्स पूरे किए। और आपका जो प्रोफेसर 60 इयर्स पे रिटायर हो जी। जाता है, पेंशन देते हैं यूनिवर्सिटी पेंशन देती है या लमसम कोई नहीं पेंशन है अभी। पेंशन है वो लाइफ टाइम जैसे गवर्नमेंट के हाँ, रूल्स हैं बिल्कुल, उसमें। और छोटे मुलाजमीन का भी सबका यही pension, मामला है वहाँ पे भी। हाँ। अच्छा छोटे मुलाजमीन का एक इशू बहुत अरसे से हज़ारा यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि शुरू में मकामी सतह पे लोग नहीं लिए गए और इजलास से लाए गए, अब क्या वो मतलब अभी तो वो तो रूल्स में आ गए, एक्ट में चेंजेस आ गए ना, आप तो नहीं ले सकते। 1 to 5 स्केल तक, 1 से 5 तक स्केल है वो डिस्ट्रिक्ट मानसरा के लोग से ले सकेंगे, और 6 से लेके 16 तक वो डिवीजन, हज़ार डिवीजन के। ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी और डिवीजन जाते, अगर आपको बिल्कुल एक बंदा नहीं मिल रहे यहाँ से available नहीं है तो एडजस्टेंट डिवीजन से ले सकेंगे। ठीक है। लेकिन वो हज़ार डिवीजन तो इज अ बिग डिवीजन, उसमें जी तो हाँ। ये बात होती। तो अभी तो ख़त्म हो गया 2012 के एक्ट में
यूनिवर्सिटी एक्ट में चेंज जो पुराने लोग इंडक्ट हो गए थे वो तो हो गए थे, वो तो हो चुके थे, अभी तो नए तो इंडक्ट कर नहीं सकते, कानून एलिजिबल नहीं है। ओके, स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि 80s में स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी लग गई थी, उसके बाद ये किसी न किसी सूरत में बरकरार है। नुकसान क्या हुआ कि हमारी असम्बलियों में वो आपको पता है वो दूसरी सियासत ने जन्म लिया और वही ख़ानदान आके वहाँ पे बैठ गए। अब आपकी यूनिवर्सिटी में या बाकी यूनिवर्सिटियों में अभी स्टूडेंट्स यूनियन बहाल हैं या नहीं है? नहीं यार, स्टूडेंट यूनियन तो नहीं है, बहाल नहीं है, कोई ऐसा उसमें नहीं है। पार्टी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन जो होते थे कि ये जी हाँ, पार्टी ये इसके देखो प्लसेस माइनसेस तो है इसमें। ये प्लसेस तो ये है कि आपको एक अच्छी लीडरशिप मिल जाती है। इसका नेगेटिव ये है कि ना मेरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिंक्स होते। देखो बाहर यूनिवर्सिटी डेवलप कंट्रीज में तो डेवलपमेंट कंट्रीज में तो यूनियंस तो है, जहाँ हमने पढ़े वहाँ भी यूनियंस थे, बल्कि बिल्डिंग का नाम है यूनियन, स्टूडेंट यूनियन। हाँ, वो पहले जो एक यूनियन होता था इस्लाम का हैबर यूनियन के नाम से, इस तरह यूनियन तो मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करूंगा कि इसी तरह यूनियन हो जिसमें पार्टीज ना हो, स्टूडेंट का यूनियन हो। ठीक है, अब उसको वी से हेड करे, वो बैठे स्टूडेंट के साथ। मैं तो हमने अभी एक स्पोर्ट बोर्ड बना लिया, और स्पोर्ट बोर्ड ऐसा है कि इसमें 6 स्टूडेंट है, मैं एज ए वीसी उसको मैं हेड करता हूँ, और साथ डीन से और कुछ हमने प्रिंसिपल भी रखे कॉलेज 2 से, उसमें स्टूडेंट को डाल दिया। ये पहले बार होगा कि स्टूडेंट को फॉर्मली हमने किसी बोर्ड में डाल दिया। तो इसी तरह स्टूडेंट यूनियन भी बन सकते हैं, कौंसल। एक कौंसल अगर इसी तरह हम बना ले जिसमें स्टूडेंट हो वीसी के साथ मिलकर, तो मैं तो इनकरेज करता हूँ कि स्टूडेंट खुद ही आ जाए, खुद ही बात करे, बजाय कि वो किसी और तरीके से सिफारिश करके आ जाए। मुझे अच्छा नहीं है कि स्टूडेंट खुद ही मुझे बता रहे कुछ इशू हो। लेकिन सर अब 12,000 स्टूडेंट हैं तो वो सारे आपके पास किस तरह? नहीं, मैं वही उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो उसके एक मॉडल ये भी हो सकते हैं कि उसमें कोई एक स्टूडेंट, हम आउट गोइंग स्टूडेंट जो होगा उसको भी एज ए प्रेसिडेंट बना सकते हैं, इलेक्शन के थ्रू आ जाए, और उसमें जो भी उसको एम्प्लॉय हो, यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय भी हो, स्टूडेंट यूनियन लीडर भी हो, तो बहुत अच्छा एक मॉडल तो बन सकती है उसका। हमें कोशिश करना चाहिए कि ये नहीं है कि इसको टोटली बैन करना, ये टोटली बैन करना बहुत खतरनाक है। हमारा जो दौर था सर, वहाँ पे तकरीरी मुकाबले होते थे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होते थे, मेरा ख्याल है आजकल वो नहीं हो रहा, ये बहुत कम हो गई नई चीजें। देखो जब तक स्टूडेंट के हाथ में ना हो, जब तक स्टूडेंट यूनियन नहीं है या एक स्टूडेंट बॉडी नहीं है सिलेक्टेड या इलेक्टेड, तो ये काम सारे नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी ने 12,000 स्टूडेंट का किस तरह काम करना, ये तो स्टूडेंट खुद ही करे ना। नहीं, आप उनको स्पेस देंगे तो करेंगे ना, आप अनाउंस कर दें कि भाई इस पे हमने पाबंदी उठा दी है, तो ये इस तरह ये अनफॉर्चुनेट वो है कि स्टूडेंट बहुत इन्वॉल्व नहीं है। अब एक मेजर स्टेक होल्डर्स है, बल्कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। यूनिवर्सिटी इस वक्त आइसोलेशन में रन हो रही है। अच्छा, एक सर और स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। मेरा आपका जो दौर था, यूनिवर्सिटी की टीमें बनती थी, हर मतलब गेम की टीम होती थी, और इंटर यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान लेवल पे मुकाबले होते थे। आजकल मुझे नहीं लग रहा कोई एक्टिविटी कुछ एक्टिविटीज है अभी आजकल थोड़ा सा जो ना, चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट पे, ये जो आप भी बात करें कि पहले थे अभी क्यों नहीं है, तो अब रिसेंटली लेटली चीसी ने कुछ ना कुछ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है पेशावर में, उसने एक बहुत अच्छी जो ना एक एक्टिविटीज की है इंटर यूनिवर्सिटीज केपी में। हमने माशाल्लाह 1-2 गेम उसमें विन भी किए, और अभी वॉलीबॉल का हमें दिए है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे केपी में टैलेंट हंट के लिए, तो हम कर रहे, उसके पैसे भी हमें मिले, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आजकल है। मेन जो खेल है वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है आपका, फिर इंडोर गेम्स आप आराम से हो सकते हैं। ये एक्टिविटीज अभी है इस वक्त, दोबारा ये अच्छे उसमें आ गए, चीसी वाला भी, सूबाई गवर्नमेंट ने भी, स्पेशली चीडी ने, जिसमें काफी काम करे इस वक्त। इसका नुकसान आप देख लेना, आपकी हॉकी खत्म हो गई, बिल्कुल, वो तो कॉलेज से हो गया। फुटबॉल बहुत बड़े पैमाने पे लोग खेलते थे, वो खत्म हो गया, क्योंकि हमारे इदारों ने, स्कूलों की टीमें होती थी, वॉलीबॉल हमारा कितना स्ट्रांग होते थे, हर देहात में खेला जाने वाला खेल है, और जनाब वो भी खत्म होकर रह गया। लेकिन ये कि आप स्पोर्ट्स फंड में पैसे तो उनको यूटिलाइज तो करना चाहिए। हमें काफी जो है ना, हम तो काफी लीडिंग उसमें है अल्लाह के पास से आजाद यूनिवर्सिटी में। एक तो हमारे स्पोर्ट एक्टिविटीज, क्रिकेट ग्राउंड भी बहुत स्टैंडर्ड है, फुटबॉल भी है हमारे पास, इंडोर हमारे पास एक बहुत बड़ा
जिमनेजियम भी है, जी हाँ। फिटनेस सेंटर भी है। बिल्कुल। हमारे पास माशाल्लाह हमारी लड़कियों की टीम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इंटर यूनिवर्सिटीज़ गेम में, ठीक है। केपी में। अच्छा। गए थे पेशावर जी जी। चासदे में भी उसने कि तब बैडमिंटन हम जीत गए, फीमेल का जी हाँ। बैडमिंटन जीत चुके। क्रिकेट में हम फाइनल में पहुंच गए थे। फुटबॉल में हम मैदान से एक गोल पे हार गए, वो भी हम फाइनल में पहुंच गए। ठीक है। तो हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया था इंटर यूनिवर्सिटीज। नहीं, टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट तो बहुत है, सिर्फ है मौके नहीं मिलते। और बाकी भी लोग मैं देखता हूँ वो भी आते हैं हमारे पास, आते हैं स्टूडेंट बाकी यूनिवर्सिटीज के, जी जी। बहुत डिसिप्लिन होते हैं। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ जी। जब भी स्टूडेंट आते हैं। हमने होस्ट भी किए, सही। कई कंपटीशन हमने होस्ट भी किए, और हम बहुत विलिंगली लोग आते हैं हमारे पास, जगह भी देते हैं हम। सर मेंटल हेल्थ के लिए जो आपकी फिजिकल पोजीशन है, जी जी बिल्कुल, वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो स्पोर्ट वो खेलों देखो से तालीम और खेल तो इकट्ठे हर वक्त इकट्ठे। इकट्ठी है, इस चीज के ये तो अलग हो नहीं सकती। सही। अच्छा सर, एम्प्लॉइज जो होते हैं किसी भी इदारे के एम्प्लॉइज होते हैं, जो उनका जो पैकेज होता है वो पैकेज अगर अच्छा है तो एम्प्लॉइज अच्छा डिलीवर करते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो एम्प्लॉई है, चाहे वो टीचिंग साइड पे है या वैसे है, तो उस बेचारे को कहीं और देखने की जरूरत तो नहीं पड़ती कि पार्ट टाइम में करूंगा तो मेरा घर चलेगा। ये आजकल इन्फ्लेशन तो बहुत हाई है, हमें काफ़ी एहसास है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेजेस है इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली जो 16 एंड बिलो का है एम्प्लॉइज, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है ये। ठीक है। तो हम कोशिश तो करें, मैंने कुछ एक दो स्कीम्स लोग के वॉलंटियरली हम कोई स्कीम स्टार्ट करें कि वेलफेयर की स्कीम एक दो है जी जी। और एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ हो, कुछ बेनिफिट्स हो। हम ये भी देख रहे हैं कि एम्प्लॉइज को जो है ना रिटायर हो जाते हैं, उसके ये असल में जो एज है ना रिटायरमेंट का 60, इसी पे इस सोसाइटी में लोग पहुंच के तो अक्सर शादियों का बच्चों का उसके शादी तो सारे जो पेंशन के पैसे उस पर लगाते हैं। तो उसके बाद एम्प्लॉई अगर अभी मतलब लाइफ उसका अगर 10 साल और है या 15 साल, तो उसके पास कुछ नहीं होते। तो हम कोशिश करें कि ऐसा कोई स्कीम्स लाए कि एम्प्लॉइज, लेकिन ये एक डिफिकल्ट टाइम है स्पेशली 16 एंड बिलो जो स्केल के लोग हैं उसके लिए। टीचर का तो हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ गुजारा है उसके 17 एंड अबव से, या जो टीचिंग कम्युनिटी है उसके पैकेजेस वगैरह वो बेहतर है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हज़ार यूनिवर्सिटी में कि इसमें उसके लिए भी हम एक कोई स्कीम, इस वेलफेयर स्कीम जो है ना ला रहे। लेकिन कुछ हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी कोई स्कीम्स में हमें डाले। ठीक है। अच्छा, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। दो आखिरी सवाल हैं, वो एक ही मैं आपसे जवाब चाहूँगा। एक तो मुस्तकबिल में हज़ारा यूनिवर्सिटी को आप कहाँ देखते हैं बहैसियत एक माहिर तालीम के, और आप ज़ाहिर वीसी भी हैं, और दूसरा जो स्टूडेंट हैं उनको और उनके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? एक तो मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी में तो कहता हूँ कि इतना अच्छी जो है ना लोकेशन में यूनिवर्सिटी, इतने उसके साथ जगह, इतना ज़्यादा जो ना लोग, अब इतना अच्छे लोग, स्टूडेंट भी अच्छे, टीचर भी अच्छे, सोसाइटी के लोग भी बहुत अच्छे, ये तो सेफली नंबर 1 होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। अगर नंबर 1 नहीं है तो टॉप 3 में ज़रूर होना चाहिए। ये देयर इज नो क्वेश्चन कि क्यों नीचे है, ये नंबर मतलब नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है। इतना लोगों के साथ हम 1000 एम्प्लॉइज है, 10,000 स्टूडेंट है, 1000 कनाल में यूनिवर्सिटी है, और मौसम को देखो, हमारे जो ना लोगों के अखलाकियात को देखो, मेहनत को देखो, तो ये तो मैं सेकंड में एक चीज़ जो देख उस पर हम काम करें कि पूरे हज़ार डिवीज़न में वी शुड बी नंबर 1 चॉइस ऑफ द पेरेंट्स। कि पेरेंट्स जो है ना ये न सोचे कि वो पेशावर जाए या इस्लामाबाद जाए या लाहौर जाए, उसका नंबर 1 चॉइस हो हज़ार यूनिवर्सिटी। कोई भी प्रोग्राम हमारा क्वालिटी का हो, ऐसा ये एक स्लोगन है जो हमने इसी पे किया। बाकी मैं स्टूडेंट और पेरेंट्स को स्पेशली कि होना चाहिए कि ये ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत कम हो गया सोसाइटी में। वो कह रहे कि शायद हम यूनिवर्सिटी में चले गए बच्ची या बच्चे तो ये क्या पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, तो ये ट्रस्ट का एलिमेंट, ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी बन गए। तो ये आपस में यूनिटी होना चाहिए। ये एक दफ़ा ट्रस्ट करे अपने बच्चों को बिल्कुल बगैर किसी हेजिटेशन को इधर भेज दे। वी हैव वेरी गुड टीम, वेरी स्ट्रांग टीम, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पास, और हम अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे के बच्चों का ख्याल। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाअल्लाह फिर किसी मुलाकात में या किसी प्रोग्राम में आपको दावत देंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना कुछ ही। इंशाअल्लाह अगले बुध को किसी नए मेहमान के साथ किसी नई जगह से आपसे मुलाकात होगी। काशिफ मलिक और सारी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।